So we're going to discuss about the pigment hemoglobin, which is an allosteric protein. We're going to discuss about its role in transporting various respiratory gases during the process of respiration. So जो आपका respiratory pigment है hemoglobin, this is the one which is present in the RBC and it is an allosteric protein जिसके पास एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं, जिसमें से कुछ आपकी substrate binding साइट होती हैं और कुछ आपकी regulatory साइट होती हैं. So आपका जो hemoglobin प्रोटीन है basically it consists of heme component and the globin protein. Alright, जो आपका heme component होता है that is the one which contains the iron molecule, right? And जो आपका globin होता है the polypeptide part, the protein part, it has 4 polypeptide chain. So it is basically a tetrameric protein with 2 different subunit alpha and beta. So this is the hemoglobin is heterotetrameric in nature. आपके पास जो यहाँ पे hemoglobin होता है इसमें जो structure होता है it has protoporphyrin 9 और tetrapyrrole ring structure, right? आपका जो hemoglobin प्रोटीन है अपने allosteric nature के कारण it can bind to both oxygen as well as carbon dioxide and other gases. Presently, we are going to discuss only about the transportation of the oxygen, right? So, with respect to oxygen, जो आपका hemoglobin है वो basically 2 स्टेट में exist कर सकता है. एक स्टेट जिसको हम कहते हैं T state. This state is basically the deoxygenated state जिसमें आपका जो hemoglobin है वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया होता. And the another one is the R state जिसमें आपका जो hemoglobin होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है and will result in the oxygenated state. Now let's discuss about the binding property of hemoglobin with the oxygen. So जो आपका hemoglobin molecule होता है वो एक टाइम पे मैक्सिमम आपके 1 to 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, राइट? सो hemoglobin जो आपका बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ ये आपके 1 से 4 मॉलिक्यूल हो सकते हैं. रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है? और 1 to 4 मॉलिक्यूल को डिनोट करने के लिए वी राइट n over here where n will be equal to 1 to 4. Okay, it could be 1, it could be 2, 3 or 4 and we will mention it here like that. That's how your oxygen it has got the ability to bind to the hemoglobin. But इसका जो बाइंडिंग क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. सो जो आपका हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है इसका बाइंडिंग क्राइटेरिया इज डिफरेंट. तो हाउ इट इज डिफरेंट, लाइक आपका जो हीमोग्लोबिन है कभी भी वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ साइमल्टेनियसली बाइंड नहीं करेगा. उसका बाइंडिंग होगा पहले एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ which will result in HbO2, ठीक है, जिसमें वो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया है. नाउ हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी होता है वो ऑक्सीजन के लिए हाई होता है, स्पेशली इन द कंडीशन जहाँ पे आपका ऑक्सीजन एनवायरनमेंट ज़्यादा हो. तो जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा बेसिकली दिस बाइंडिंग इट इंड्यूसेस द conformational change because of which it result in the increase in the affinity of hemoglobin for second oxygen molecule. ठीक है, मतलब जब आपका ऑक्सीजन पहले बाइंड किया तो वो ऑब्वियसली हाई एफिनिटी से बाइंड करेगा, लेकिन पहले मॉलिक्यूल की बाइंडिंग के बाद जो सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आने वाला है उसके लिए एफिनिटी जो है
वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इस रीजन से जब आपका नेक्स्ट सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, इसकी जो बाइंडिंग की एफिनिटी होगी वो इस रिएक्शन, इस हीमोग्लोबिन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। सो यू विल हैव HbO2. Similarly, binding of this second molecule will increase the affinity for third oxygen molecule, right? So इसके कारण HbO2 and जब आपका third molecule आएगा, you will have this, ठीक है, and similarly this will increase affinity for fourth oxygen molecule and you will have it like so. You will have it like this. So that's how 4 oxygen molecules they bind to your hemoglobin. ओके अब यहाँ पे जो आपका एक ऑक्सीजन है उसकी बाइंडिंग इसकी एफिनिटी को बेसिकली अफेक्ट कर रही है, उसको इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है वो उसकी एफिनिटी को और इंक्रीज कर रहा है। दिस बेसिकली रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस आपका जो हीमोग्लोबिन है वो साइमल्टेनियसली कभी बाइंड नहीं करेगा, एक एक करके बाइंड करेगा एंड जब आपका वो बाइंड कर रहा होगा वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो एफिनिटी है वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करता रहेगा। So depending upon the positive cooperative binding of oxygen with hemoglobin, इसमें जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आता है जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग को प्रिडिक्ट करता है विद द हीमोग्लोबिन, वो जो कर्व है वो आपके पास आता है कुछ इस शेप में, विच इज बेसिकली सिग्मोइडल शेप। सिग्मोइडल मतलब एस शेप। ये आपका लीनियर नहीं होता है। सिग्मोइडल होने का रीज़न क्या है? दिस कोऑपरेटिव बाइंडिंग, क्योंकि जब आपका पहला ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया उसने सेकंड मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी को इंक्रीज किया था, तो वो बेसिकली सेकंड के बाइंडिंग के लिए एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लीनियर ये आपका एस शेप में जाता है लाइक दैट। ऑलराइट, यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है दिस इज योर PO2 विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ये बेसिकली आपको इनडायरेक्टली बताता है आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द पर्टिकुलर मीडियम। एंड जो आपका यहाँ पे y एक्सिस है दिस इज द वन विच इज प्रिडिक्टिंग कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपके कितने सैचुरेट हो चुके हैं विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे आपके पास इधर राइज आ रहा है इन द एस शेप एंड ओवर हेयर यू हैव गॉट द प्लेट्यू रीजन जहाँ पे अब आप हीमोग्लोबिन को और सैचुरेट नहीं कर सकते हो। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर 100% ऑफ सैचुरेशन, कि मतलब जितने भी आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब सैचुरेट हो चुके हैं। ऑलराइट, अब अगर ये आपका 100% है तो मे बी दिस विल बी योर 50%, राइट। ये 100% तो यहाँ 50 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट विल बी टर्म्ड एज P50, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% of hemoglobin are saturated with oxygen. Alright, so that's how you have got the oxygen hemoglobin dissociation curve. Okay, जब आप ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करते हो रेस्पिरेशन में, वहाँ पे आपके पास अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं जो कि आपके हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ उसको इफेक्ट करती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को इंक्रीज करेंगे एंड दे विल फेवर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि इस बाइंडिंग में इंटरफेयर करेंगे और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को रिड्यूस करेंगे
टू बाइंड टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके इस ग्राफ को भी इफेक्ट करते हैं, ओके। सो कुछ फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच डिक्रीजेस affinity of hemoglobin for oxygen, what they do, they shift the curve towards right, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, जिसके कारण जो उसका सैचुरेशन है वो भी आपका लेट होगा, एंड आपका जो P50 वैल्यू है वो आपका बेसिकली हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। सो दोस फैक्टर जो कि एफिनिटी को रिड्यूस करते हैं वो आपके कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। इन कंट्रास्ट टू दैट, द फैक्टर्स विच इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ hemoglobin for oxygen, what they will do, they will shift this curve towards left, right। so उस केस में आपके पास जो कर्व होगा वो इधर आ जाएगा, एंड इन कंडीशन में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कंपैरेटिवली जल्दी सैचुरेट होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो P50 वैल्यू है वो आपका हो जाएगा रिड्यूस, राइट। सो दैट्स हाउ जो आपके फैक्टर्स होंगे आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे, डिपेंडिंग क्योंकि क्या रोल है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को रेगुलेट करने में, वो आपके कर्व को टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। So now we will compare the binding of oxygen with two different respiratory pigment, hemoglobin and myoglobin. जो hemoglobin pigment है that is the one which is present in the RBC. जो आपका myoglobin pigment होता है this is the one which exists in the muscle cells. So आपका जो hemoglobin है इसके बारे में हमने पढ़ा कि this has got 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta. In contrast to that, जो आपका myoglobin होता है this is the one which has got single polypeptide chain, alright, which comprise of 153 amino acid. Other than that, it has got a hydrophobic cleft in center in its structure, जिसके कारण the affinity of myoglobin will be much higher for oxygen as compared to that with hemoglobin. तो जो आपके myoglobin molecule है उसकी affinity because of this hydrophobic center is much more as compared to the hemoglobin molecule. तो जो binding होगा myoglobin का ऑक्सीजन के साथ वो आपका टाइट होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा as compared to the hemoglobin. Alright. Other than that, आपका जो hemoglobin था उसके बारे में हमने पॉइंट किया था this can bind to 1 to 4 molecule, right? But जो आपका myoglobin होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा and you will have MbO2, right? अपनी हायर एफिनिटी के कारण the myoglobin is used as storage pigment for storing oxygen molecule in muscles, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन में ऑक्सीजन स्लोली रिलीज हो सके और मसल के अंदर आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका ऑनसेट डिले हो सके, राइट। सो जो इसका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होगा वो आपके हीमोग्लोबिन से डिफरेंट होगा। मायोग्लोबिन जो है वो आपका सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और इसका जो एफिनिटी है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इस रीज़न से जो आपका मायोग्लोबिन होगा उसका जो कर्व आएगा दैट विल बी हाइपरबोलिक इन नेचर, राइट।
तो इसमें जो राइज होगा विद इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन आपके मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करते जाएंगे एंड वो आपको लीनियर इंक्रीज देगा। तो इसमें सिग्मोइडल कर्व नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन में सिग्मोइडल का रीजन था पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग, बट यहाँ पे तो मायोग्लोबिन को एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है। सो इन कंट्रास्ट टू हीमोग्लोबिन, जो मायोग्लोबिन है उसका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होगा वो होगा आपका हाइपरबोलिक शेप में, राइट। एंड अगर हम इसका चेक करें आपका सैचुरेशन, ये है यहाँ पे 100%, राइट, एंड लेट्स से ये हो जाएगा आपका 50%। So if we compare it, this will be P50 for myoglobin and this will be P50 for hemoglobin. आपका P50 जो है मायोग्लोबिन के लिए it is much less than P50 for hemoglobin, ठीक है। इवन दिस प्रूव्स कि जो आपका मायोग्लोबिन है इट हैज़ गॉट हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन molecule.